हेलो हेलो गुड आफ्टरनून सर। हाँ वीडियो इज ओके यस सर। एंड वॉइस क्लियर सर। ओके सो लेट मी स्टार्ट shear force bending moment diagram. The topic is now is overhang beam. Overhang beam. Overhang means nothing. It is also called extended simply supported beam. Extended simply supported beam. If maybe single side or maybe both side. तो सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है अपने पास? इट इज ए नथिंग बट इज simply supported beam, right? If this beam is extended in only one direction, that is called singly overhang beam, single overhang beam, right? Or in another arrangement, the voice is okay, voice is okay, Yes, sir. okay. यस Now if we extend the simply supported beam on both sides, that I call double overhang beam, है ना? Both cases are example of overhang beam. Clear? यस सर। Now it is the first thing. Second thing, overhang beam, I am taking a simple example so that you could be able to understand what is the main object. Just to read this overhang beam, it is extended. I am just taking a complex example. I am not taking a simple example. Right? It is a overhang beam and it is subjected to UDL, uniformly distributed load, W न्यूटन पर मीटर और किलो न्यूटन पर मीटर, है ना? नाउ अब हमें इसके लिए एसएफडी बीएमडी बनाना है ना? तो समझना इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है इसमें? सबसे पहले हमें देखना है कि हमें देखना कहाँ से है, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना? तो अपन जस्ट होल्ड इट, होल्ड इट। सपोज करो हम देखते हैं फ्रॉम दिस साइड और यू कैन सी फ्रॉम दिस साइड आल्सो, ऐसे भी देख लें। तो उसके बाद में हमें देखना पड़ेगा कि ये रिएक्शन की वैल्यूज क्या है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द रिएक्शन वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट. इट इज आर ए, इट इज आर बी, है ना? सपोज इट इज 2 मीटर, it is 5 meter, it is again 2 meter. This diagram, the loading is symmetric or not? Check it. Yes, sir. Symmetric. Loading is symmetric and the value of Yes, sir. load, it is simply value of load is suppose is 10 kilonewton per meter, right? Yes. It is the first example having the symmetricity. Second example, we can say this value is 20 kilonewton per meter, this value is 20 kilonewton per meter, length 2 and 2, and this span having 10 kilonewton per meter. Are you getting? Yes, sir.
it is 20 kilometer per meter, and for 5 meter 10 kilometer per meter. Now this example relates to symmetry. ये सिमेट्री है कि नहीं है लोडिंग में? Yes, sir. Yes, sir. Still yes, sir. अभी भी सिमेट्री है. आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. है ना. मैं बार बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा ये और टाइम आपका कम है. जुलाई में आपका लास्ट वर्किंग डे आ जाएगा, तो है ना. अगर मैं इसको 2 कर दूं अभी इस केस के अंदर, इन दिस केस सेम एग्जांपल आई एम टेकिंग, it is 2, it is 5 and it is 3. Now the loading is symmetric or unsymmetric, non-symmetric? Sir, unsymmetric. Unsymmetric. है ना. तो ये आपको फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक है. तो मेनली जो एग्जांपल और सिमेट्रिसिटी में हम ले लेते हैं, है ना. तो ड्यू टू सिमेट्री वी कैन डायरेक्टली पुट इट हेयर. Due to symmetry, RA equal to RB equal to how much? कितना आएगा? 90 kilonewton. Check it carefully. 645. RA equal to RB. The total load is 90 kilonewton. 45 Yes, sir. kilonewton. RA plus R. Yes, it is taken by 2 supports. So it is 45 kilonewton. Do you agree? Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ, है ना. ध्यान रखें. चलो, पहली चीज क्लियर होगी. RA RB आ गया आपके पास. 45. अब अपन ड्रॉ करते हैं इसका शेयर फोर्स डायग्राम, है ना. चलो, तो शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए इसमें कितने रीजन्स दिख रहे हैं आपको? हाउ मेनी रीजन्स? 3, sir. वेरी गुड, वेरी गुड. A, B, C एंड D. तो AB, BC और CD, है ना. जस्ट वेट. अब मैं इसको ले लेता हूं. A, B, C, D. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. क्रॉस सेक्शन, है ना. अब जैसे अपने लाइन बनाई है, लाइन मैंने बना दी और ये एरो मैंने बना दिया. अगर ये एरो हम बना भूल भी गए और मैं अगर ऐसे मार्क कर दूं, तो द सेम मीनिंग, है ना. मीन्स वी आर मेजरिंग x फ्रॉम दिस साइड. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, फॉर sir. दिस क्रॉस सेक्शन XX, है ना. तो मैं यही लिखता हूं शॉर्ट में, आपको दिख जाएगा. shear force at section X. shear force at section X. तो या तो अपन तो इस साइड से देख रहे हैं, क्योंकि अब क्या हो गया इसमें, ये सारा मिट गया, केवल ये दिख रहा है मेरे को बस, है ना. तो हाउ मच लोड? द रेटिंग इज 10 किलो न्यूटन पर मीटर. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्टिकल लोड? So 10 kilonewton into X. 10x, right? That is the meaning. 10x, right? If we check the sign convention, it is negative or positive. Check it. Negative, sir. Negative. Now downward negative value, right? Okay. अब ये x, this equation is valid for when the x चलते रहे कहाँ तक? ये B पॉइंट तक आ जाता है, यहीं तक ये वेरी करें, क्योंकि अपने लिखा है AB रीजन, है ना. AB रीजन में लिख रहा हूँ x, देखो 0 to लेस देन. शेयर फोर्स में कभी भी ये इक्वल टू मत कर देना, है ना. कितना हो गया ये? 2 मीटर. तो shear force we can directly put the value at A. What is the value? 0.
एंड लास्ट Yes. पॉइंट 2 देखो, है ना, तो shear force at B, है ना, तो shear Minus force 20. at B, है ना, तो shear force देखो at B, अब मैं B लिख तो रहा हूँ इसको, लेकिन एक्चुअल में B नहीं है ना, तो इसको क्या लिखता हूँ पता है, मैं इसको मैं लिखता हूँ, जस्ट सी केयरफुली, आई एम राइटिंग हेयर shear force just before B और B माइनस, क्लियर। Yes, sir. Yes, तो sir. ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो वैसे भी कितनी आ जाएगी, ये हो गया 10 इंटू 2 20 Minus 20. -20। चलो तो मार्क करो उसको आप, ए पर 0 और बी पर हो गया ये बी -20, यहाँ जाते हैं। हाउ इट कनेक्ट्स ए टू बी, ए टू बी कनेक्ट विद Straight स्ट्रेट line, लाइन। sir. चलो Straight line. ये आ गई स्ट्रेट लाइन, और ये जो वैल्यू है यू कैन मार्क इट, इट इज 20। अब अपन आ जाते हैं बीसी रीजन पे, देखो अपन आ जाते हैं बीसी रीजन, है ना, तो बीसी रीजन में आते क्या करेंगे अपन, क्रॉस सेक्शन यहाँ ले लेते हैं और ये मेजर करेंगे लाइन एक्स एक्स, राइट। तो बीसी रीजन में Yes, जो sir. एक्स वेरी करेगा वो करेगा कहाँ से, 2 से लेकर, और ये 5 और 2 7 7. रहेगी, देख लो एक बार, ठीक है। Yes, sir. नाउ Yes. व्हाट अबाउट शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स, यहाँ रख लेता हूँ मैं। नाउ चेक द टोटल, इट इज टोटल वर्टिकल लोड, Yes, sir. तो ये तो हो गया 10x नीचे की तरफ डाउनवर्ड हो गया, और ऊपर क्या जा रहा है, आर ए की वैल्यू कितनी है 45, जो ऊपर जा रहा है वो पॉजिटिव। पहले आप ये चेक करें ये इक्वेशन समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। Yes, sir. 10x + 45 -10 + 45, है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब जब मैं यहाँ x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो क्या आंसर आएगा, 25. है ना। अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो ना अपन को कि ये वैल्यू कैसे जा रही है, देखो तो एस एफ एट बी ये हो गया -20 और 45, कितना हो गया, +25 हो गया, Yes, sir. Yes. Yes, sir. +25, तो चेक करो डायग्राम सही बन रहा है। Yes. Yes, sir. सीधी सीधी बात है, मैंने पेंसिल उठाई, यहाँ से 0 10x सीधा यहाँ आ गया, -20 आ गया, उसके बाद -20 में क्या ऐड हो गया, प्लस आर ऐड हो गया, प्लस आर ऐड होते हुए आ गया +25, क्लियर। उसके बाद मैं आगे चलूँ, अब सीधा मैं आ जाता हूँ इस क्रॉस सेक्शन को, मैं सीधा चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, यहाँ आ जाओ सपोर्ट पे, सी से थोड़ा सा पहले, है ना, तो एस एफ एट सी माइनस कर देता हूँ, व्हाट द वैल्यू -10, x इज हाउ मच, कितना हो जाएगा, 7. 5 to 7 + 45, Yes, sir. तो -70 + 45 हाउ मच, -25. 35. -35 किलो न्यूटन। इज इट ओके, Yes, sir. -25 सी is माइनस सी है, -25. 25. ओके ओके, सॉरी -25, है ना। तो आ जाते हैं सी से थोड़ा पहले, तो ये आ गया -25, तो ये यहाँ कर देता हूँ, चलो इसको ले देता हूँ 25, लिख दिया। बी टू सी connects with equation is Straight line. Straight line. so it is again just right। Yes, sir. अब देखो
अब सी पर आ गया -25, लेकिन सी पर माइनस एड, बिल्कुल सी पर क्या हो जाएगा, 45 -25 प्लस 45, तो कितना हो जाएगा, 20 plus 20 -25 प्लस 45, इट इज प्लस 20 20, positive. प्लस 20, ये चला गया प्लस 20 ऊपर की तरफ, राइट। Yes sir. चलो आगे, आगे चलते रहो। अब ये अब आया था मैं सी डी रीजन पे, सी डी में आ जाए, Yes sir. सी डी रीजन। तो सी डी रीजन में जो इक्वेशन बनेगी अपने पास, वो क्या बनेगी, -10x प्लस 45 प्लस 45, चेक करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, और x वेरी करेगा कहाँ से कहाँ तक, 7 से to लेकर 9. 9 9. तक। 7 to चलो। 9. तो जरा एक बार 7 पुट कर दो, इसके अंदर क्या आएगा देखो, 7 पुट करने पे 20. क्या आता है, 20. 20. 20, वो तो दिख ही रहा है, वो तो वहीं रह गया है ना, चलो हटा दो। अब लास्ट पॉइंट कौन सा रहा, 9, 9. 0. 0. तो 9 आते ही क्या हो गया, 0 हो Zero. गया। ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम, बात समझ आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. देखो इसमें कुछ भी नहीं है, आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग दिस, केवल वर्टिकल फोर्सेस को सम करना है ना। तो मैंने पहले ये रीजन ले लिया, दिख रहा है कि ये एक रेटिंग में है, जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, 10x यहाँ तक आ गया, यहाँ आ गया -20, जैसे ये आ गया तो प्लस 40 ऐड हो गया तो ऊपर चला गया, फिर आगे चलते गए नीचे आता गया, फिर नीचे आता गया, फिर ऊपर ऐड हो गया, फिर आते आते आते। इज इट क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now we just want to locate location where the shear force is 0. तो shear force is 0 हमें कहाँ दिख रहा है, हमें BC रीजन में दिख रहा है shear force is 0। तो BC रीजन की इक्वेशन क्या है अपने पास, दिस वन, राइट। Yes, sir. तो हमें अगर ये Yes, sir. लोकेशन निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा अपन को, here आई एम राइटिंग here 0. -10x plus 45 is equal to 0 0. and x is 4.5. 4.5 4.5. है ना। Yes, sir. 4.5, x की वैल्यू 4.5 है, कहाँ से मेजर कर रहे हैं अपन, लेफ्ट से मेजर कर रहे हैं। 4.5 कैन एग्जिस्ट और नॉट, चल तो चेक करो। Yes, sir. इट Agree. इज एग्जिस्ट, Yes, कर sir. सकते हैं Yes. टू, Yes. तो ये Yes यहाँ sir. कहीं सेंटर में करेगा। आपको मैंने पहले ही बताया है, कभी कभी क्या आएगा, ये जो x की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने के ऊपर बहुत आगे, एक्चुअलिटी में क्या होगा, वहां पर वो 0 पर मार्क नहीं आ रहा होगा। बात समझ रही मेरी, Yes. Yes sir. Yes, sir. है ना। चलो, तो ये तो हो गया शेयर फोर्स डायग्राम का मामला हो गया, कहां पर क्या कितनी वैल्यू हो गई। अगर मैं इसमें लिखूं, अब ये सारी वैल्यू लिखनी है मेरे को, तो ये देखो, ये इसको जस्ट होल्ड इट प्लीज, वेट। वॉइस इज कमिंग। Yes sir. Yes, sir. हाँ, कहां पर थे, हमें इसमें वैल्यू पढ़नी है, हमें वैल्यू लिखनी है कि आपको लोकेशंस पे शेयर फोर्स की वैल्यू बताएं।
तो आई एम जस्ट रेडिंग ए 0, बी माइनस 20, बी प्लस कितना ये 25, 25, 35, सी माइनस व्हाट इज द वैल्यू, सी माइनस 20, sir. सी माइनस 25, 25, नेगेटिव पॉजिटिव, negative. yeah, shear force because we are watching from this side, यहां से देख रहे हैं हम इस साइड से देख रहे हैं, इस साइड से देखते जा रहे हैं, तो C माइनस मतलब इससे थोड़ा पहले कितना आ रहा है -25 एंड C प्लस 20. 20 एंड फाइनली एट D is 0. Yes, sir. Yes, sir. बाकी ये जो कहानी आपको दिख रही है ये वाली, Yes, sir. you can write this mathematics also in rough. Examiner will not interested about just to see how you calculate this. Examiner just see this diagram. Clear? Yes, sir. Yes, sir. तो आप सिंपली राइट में एक 5 सेंटीमीटर लाइन वर्टिकल लाइन खींच दें और इधर ये बैठे बैठे ये सॉल्व करते रहे, बिकॉज क्योंकि ये जो मेथड है ये अलग अलग, कोई किसी ने इस साइड से लिया है, किसी ने इस साइड से लिया है, किसी ने दोनों साइड से लिया है, तो अलग अलग तरीका लिखने का हो गया है ना. तो सिंपली डायग्राम विल बी सेम, चाहे आप इधर से लो, चाहे आप इधर से लो, और चाहे आप दोनों तरफ से लो, कैसे भी कर लो. क्लियर? आगे चलूं. Yes, sir. Yes, sir. BM diagram. The BM diagram is so important. One 26. चलो, अच्छा इसमें मुझे एक चीज बताओ, इसमें इंटरमीडिएट पॉइंट्स कौन कौन से हैं? B, C. B or C? B and C, and extreme points are A and D. Yes, sir. Yes. है ना. ये वाला जो डायग्राम है इसमें इंटरमीडिएट पॉइंट्स पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू सेम आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? नहीं. इंटरमीडिएट पॉइंट्स पर द वैल्यूज ऑफ बेंडिंग मोमेंट विल बी सेम और नॉट? डायरेक्शन चेंज. मैं वो क्या बताया था, ये लॉ कब फेल हो जाएगा? जब इंटरमीडिएट पॉइंट्स पर बीएम की वैल्यू सेम कब नहीं होगी? जब वहां पर कोई इंटरमीडिएट कपल लगा रहेगा उस पॉइंट के ऊपर. Yes, में sir. पॉइंट, अगर बी और सी, बी और सी और दोनों पॉइंट पर कोई कपल लगा हुआ है, एक्सटर्नली कोई कपल लगा हुआ है, तो इंटरमीडिएट पॉइंट्स पर जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू सेम नहीं आएगी, अदरवाइज द वैल्यूज मस्ट बी सेम. क्लियर? Yes, sir. जब तक कोई एक्सटर्नल कपल लगा हुआ नहीं हो. तो कपल कैसे लग सकता है? डायरेक्टली भी कपल लग सकता है, और एसेंट्रिक अगर लोड लगा दूं मैं उस केस में भी कपल लग सकता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. है ना. तो कपल में बी डायरेक्टली एक्ट्स, और इफ द लोडिंग इज एसेंट्रिक, जैसे मैं उंगली आपको दिखा रहा हूं, इफ द लोडिंग इज एसेंट्रिक, in that case the bending moment, the couple is also exist. So तो वैल्यू अगर केवल बी पे लगा हुआ है तो बी पर सेम नहीं आएगा, अगर सी पे लगा हुआ है तो सी पर सेम नहीं आएगा, और बी और सी दोनों पे लगा हुआ है तो दोनों पे सेम आ जाएगा. मतलब दोनों पे अलग अलग आएगा वैल्यू, अलग है ना, मैच नहीं करेगी वैल्यू. आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? Yes, sir. अब कोई कपल नहीं है तो वैल्यू सेम आनी चाहिए, दैट इज द लॉ. चालू करें? Yes, sir.
एक्स एक्स। चलो, बेंडिंग मूवमेंट एट सेक्शन एक्स, रीजन ए बी मैं डिफाइन कर देता हूं यहाँ पर, है ना। और ए बी रीजन के लिए जैसे बात करूंगा तो एक्स इज 0 to 2, 2 मीटर का है पूरा है। चलो, Yes, sir. Yes, sir. क्या इक्वेशन आएगी बेंडिंग मूवमेंट की? 10x square by 2. ओके, जस्ट लेट मी चेक साइन कन्वेंशन। हाँ, अब बताएं। हाँ, बेंडिंग मूवमेंट एट सेक्शन एक्स। Positive 10x square by 2. इट इज साइन नेगेटिव और सर पॉजिटिव? नेगेटिव, चेक सर नेगेटिव Negative, आएगा। sir. कुलदीप नागर, इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव? कंफ्यूज नहीं Negative, होना है sir. इसमें। देखो, ये हो गया ना, ये स्केच पेन रखा हुआ है, यही तो है। और ये Yes, दो sir. सपोर्ट लगा दूं? Yes, sir. लगा दिए। अब ये जो यूडीएल बना हुआ है, यूडीएल मींस द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो यूडीएल का मतलब ये है कि ये लो, ये लगा दिया मैंने वो। ये स्केच पेन जो है मैं इस पे, इस पोर्शन पे रख रहा हूँ, ठीक है। क्या इफेक्ट आएगा? Yes, देखो, sir. आएगा। Yes, sir. इट Yes, इज sir. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज Yes, डायरेक्शन इज पॉजिटिव, इज नेगेटिव। Negative. तो Negative. इट इज कितना हो जाएगा? लोड हो गया -10x, कहाँ पर लगेगा? x/2 पर X लगेगा। by 2. इज इट क्लियर और नॉट? चेक करो। Yes, sir. Yes, sir. -5x स्क्वायर। चलो, हो गया। एट x इज इक्वल टू 0, बेंडिंग मूवमेंट एट ए 0। देखना अभी, एट x इज इक्वल टू 2, ओ, तो बेंडिंग मूवमेंट एट बी 20. -20. -20. -20 किलो न्यूटन मीटर m एट बी, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ए बी सी डी, चलो मार्क करो। ए पर कितना वैल्यू है बेंडिंग मूवमेंट का? 0। 0. बी पर कितना है? -20। -20. वी कैन, Parabolic. है ना। और ये इक्वेशन हो गई y प्रोपोर्शनल टू -x स्क्वायर। X तो square. इट इज Parabolic. इन्वर्टेड यू और सिंपल यू? Inverted. इन्वर्टेड यू, है ना। तो ये ध्यान रखें, इसको ऐसा बनाए, राइट, Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज इमेजिनरी शेप इज नथिंग, वी कैन एक्सटेंड लाइक दैट। हो गया इन्वर्टेड यू, Yes, sir. यस है। सर। तो ये दिखाना वो केवल पैराबोलिक हो गया। चलो बताओ, अब बी, ए बी तक हो गया, आगे चलें। अब चले बीसी रीजन पे। देखो, अब आ रहे हैं अपन बीसी रीजन पे। क्रॉस सेक्शन यह ले लिया मैंने, और ये एक्स ले लिया यहाँ पे। तो आई एम राइटिंग हेयर बीसी रीजन, है ना। तो बीसी रीजन के लिए क्या इक्वेशन आएगी? बीसी रीजन के लिए क्या इक्वेशन आएगी? इस क्रॉस सेक्शन पे क्या इक्वेशन आएगा? कह सकता है? बेंडिंग मूवमेंट एट दिस क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स। बेंडिंग मूवमेंट, दो लोड लगे हुए हैं इसमें, एक तो यूडीएल लगा हुआ है और एक सर -10x -2। माइनस, चेक करें, -10. सर जो 10 UDL लगा हुआ minus उसकी 1. तरफ से तो 10। Minus. माइनस, आगे बोले, 1. नहीं पूरा बोले। बेंडिंग मूवमेंट एट दिस क्रॉस सेक्शन एक्स, जो कि एक्स डिस्टेंस पर है, यहाँ पर क्या वैल्यू, क्या इक्वेशन क्या आएगी? सर -10x -2। -10x -10x
into x by 2 plus RB minus x minus 2. RB into x minus 2. Yes, that is the meaning. Good. सुभाष चंडांगी, वेरी गुड. देखो ये हो गया अपने पास, है ना? Yes, sir. कितने लोड दिखाई दे रहे हैं? एक तो यूडीआई लगा हुआ है जो ऊपर से नीचे लगा हुआ है, और एक लगा हुआ है पॉइंट लोड जो ऊपर की तरफ लगा हुआ है. दिख रहा है? Yes, sir. Yes. 2 मिनट के लिए जरा इसको हटा दो इसको. ये आर भी नहीं है ना? चेक करो क्या आएगा बेंडिंग मोमेंट. 10x इंटू एक्स बाई 2. Yes, sir. दिस होल डिस्टेंस इज x. तो लोड इज 10x. कहाँ लगेगा? आधे पे लगेगा. तो 10x इंटू एक्स बाई 2. इट इज विजिबल. 10x Yes, sir. इंटू एक्स बाई 2, है ना? चूंकि डायरेक्शन इसमें नेगेटिव, ये ऐसे घुमाएगा इसको, तो इट इज माइनस 5x स्क्वायर. राइट? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको भूल जाओ. इससे तो हमने मूवमेंट अपन ने कर लिया कैलकुलेट. अब इससे कर लेते कैलकुलेट. तो फोर्स ये रहा और डिस्टेंस ये रही. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स? इट इज आर बी. अब व्हाट इज द डिस्टेंस? हाउ मच दिस डिस्टेंस? दिस डिस्टेंस इज X x माइनस x 2. minus 2. और कैसे घुमाएगा? ये ऊपर की तरफ घुमाएगा. दिख रहा है लोड Positive, ऊपर sir. जा रहा है. Yes, तो इट sir. इज, ये कैसे Yes, घुमाएगा? sir. ट्राइंग टू इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो इट इज, इक्वेशन बिकम्स minus 5x square plus RB is 45, x minus X 2. minus 2. Right? Check it. Yes, sir. The BC reason Yes, is sir. valid for 227. चलो x equal to जरा बताओ वैल्यू क्या आती है? बेंडिंग मोमेंट एट B. बेंडिंग मोमेंट एट B मींस x की वैल्यू 2 है. यहां से मेजर कर रहे हैं अपन x की वैल्यू, क्योंकि BC रीजन में क्या है? 2 से लेकर 7 तक. तो 2 पर कितनी वैल्यू है? पुट करें. Negative 20. Minus 20. Minus 20. The minus 20, check it. We got in previous equation. Yes, sir. सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं. And the last point is M at C. क्या हो जाएगा? -5x हो गया 7 का होल स्क्वायर प्लस 45x 7 minus 2 5. जरा करना सोगे तो कैलकुलेट. ये आता है आपके पास M at C is -5 7 7 जा 49, और ये हो गया. इज इट ओके और नॉट? चेक करो जरा एक बार. Yes, sir. अब ये आता कितना है ये तो बताओ मेरे को. Minus 20. Sir, माइनस, Minus 20. हाँ ये करीब आएगा. Sir, minus नॉट 20. Yes, sir. -20 किलोमीटर मीटर इज ओके. Yes, sir. Yes, sir. ये -20 आ रहा है क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो सी पर -20, ओहो, और बी पर भी -20. सेम ये है क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलो जी, बी और सी जरा चेक करो कैसी इक्वेशन है. इक्वेशन Parabolic. पैराबोलिक. और पैराबोलिक भी कौन सी वाली है? इन्वर्टेड यू और सिंपल यू. U. U. वाई प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है? Sir, negative x square. या इट इज y प्रोपोर्शनल टू x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2. 2. साथ में क्या लगा हुआ है? नेगेटिव. इट इज शॉर्टली वी कैन से y प्रोपोर्शनल टू -x स्क्वायर. गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. इट इज इन्वर्टेड यू, है ना? इट इज इन्वर्टेड यू. हाउ इट कनेक्ट्स? कैन यू इमेजिन? U. Simple U. Yes, Inverted sir. U. Sir, बीच में देखो जीरो की अब तरफ देखो, जाता हाँ होगा. अब इसलिए ये इंपॉर्टेंट है. जस्ट होल्ड इट, जस्ट होल्ड इट, जस्ट होल्ड इट, जस्ट होल्ड इट, होल्ड इट प्लीज. वेट. अब्दुल माजिद, अभिनव व्यास. Yes, sir. ओके, नहीं आप अपना माइक जैसे ऑन करते हैं मुझे दिख जाता है. अमनदीप,
अमनदीप के साथ प्रॉब्लम रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। अविरल जैन, प्रेजेंट सर। ओके। आयुष सोनी, Present, sir. शेखावत, Yes, sir. गुजर, हरीश गुजर, प्रेजेंट सर। हर्षिता जैन, Present, sir. जफर खान, Yes, sir. कुलदीप नागर, यस सर। मोइन खान, प्रेजेंट सर। निकिता गुप्ता, अरे यार, Present, निकिता sir. गुप्ता, ओके। प्रप्ति मीणा, Present, sir. ओके ओके ओके। प्रप्ति मीणा, प्रप्ति मीणा इज प्रेजेंट और नॉट? प्रप्ति मीणा एब्सेंट? सर हाँ सर अब्दुल माजिद इज प्रेजेंट सर, वो उसके हाँ नेटवर्क हाँ प्रॉब्लम प्रेजेंट है, दिख गया मेरे को। वो तो माइक ऑन करते मुझे दिख जाता है ना। प्रप्ति मीणा की बात कर रहा हूँ मैं। प्रप्ति मीणा एब्सेंट है। राहुल कुमार, यस सर। राहुल कुमार, यस सर। ओके। राहुल सोनी, Yes, sir. रुचि लांबा, Yes, sir. शुभम सिंगारिया, यस सर। डांगी, प्रेजेंट सर। विशाल मेहरा, योगेश। Present, sir. Okay, okay. Just wait. I am just hold it. Please wait. Voice is coming? यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ हाँ, अपन यहाँ पे थे। बी और सी है ना, इट इज इन्वर्टेड यू। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इन्वर्टेड यू मे बी इन दिस शेप, गेटिंग, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। मे बी दिस वन, यस सर। Yes, sir. or maybe this one. Are you getting? There are three types of curves: below, touch, and above. Yes, sir. Yes. अब यहाँ पर आके अपन को प्रॉब्लम आएगी कि ये वाला ड्रॉ करेंगे कि ये वाला ड्रॉ करेंगे कि ये वाला ड्रॉ करेंगे, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? एनी मेथड यू हैव? सर X इसको की value put कर देंगे मिड में. थोड़ा सा जरा चेक करो, एक बार क्रॉस चेक करो हाउ वी कैन सॉल्व कि ये सबसे लोएस्ट कर्व आएगा कि मिडिल कर्व आएगा कि टॉपेस्ट कर्व आएगा। प्लीज क्रॉस चेक, आप जरा सर, सॉल्व वो- करें इसको। सबसे ऊंचा ऊपर वाला हाउ कुड यू से? सर 3 और 6 इसको जीरो के पुट कर देंगे अपन। बहुत सुंदर, वेरी गुड। जस्ट वेट, आई Three or six. एम जनरेटिंग द अटेंडेंस। हाँ, यस, हु इज देयर? कुलदीप नागर। यस सर। हाँ, तो 0 पे पुट करेंगे। ओके, सो क्या वैल्यू आएगी एक्स की, जरा बताना एक बार मेरे को। 3 और 6। 6 और 3. 5x square. Please just do the cross check or verify the values of x where the bending moment is 0. Minus 5x square plus 45x minus 2 is equal to 0. That is the equation. This one is the equation. यस सर। यस सर। Is equal to 0. यस सर। सर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव है, उससे देख लेंगे।
देख Sir, लेंगे नहीं, simply we can देखना say है। that. Sir, simply if I suggest any method, we can take half of the length of this beam and we can put in this equation, which is mx is equal to minus 5x square plus 45x minus 2. So, sorry, the other one, which is from B to C, and where we can check that whether there is which shear stress value is going positive or negative. If it is positive, then we can directly say that the third graph will be the graph of the bending moment, or if it is still low. I am getting, but this method is suitable when the diagram is symmetric. Yes, sir. सर mx Is that की वैल्यू 0 पुट कर देंगे और Yeah, initially कर लेंगे. you can simply put it here, minus 5x square plus 45x minus 2. This is the equation of bending moment in the BC region. Yes, sir. Yes, This sir. becomes Equal 0. to 0. So please calculate the value of x. It is the quadratic equation. Please calculate the value of x. So 5x square, that is minus 45x minus 90 plus 90 becomes 0. So equation is x square minus 9x plus 10. I think, is it okay? सर 6,3 आ रहा है. Yes, sir. Yeah. 6,3. Yes. X is equal to how much? 6. 6 and Okay. 3. No problem. Both are positive value, 6 and 3. Yes, sir. Right? Then we can able to say 3 and 6. 3 and 6. सर सर उसके रीजन में आ रहा है सर. सर Yes. सर आई थिंक 10 और 1 आएगी, 6 और 3 नहीं आएगी. नो सर, उसमें Please cross verify. I don't have any 10 तो आ answer ही of नहीं this. सकता सर, लेंथ ही नहीं है इतनी. X is अभी मैं solve करूँगा minus b. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 10, 1 से आएगी. This one. It is 9 plus minus 81 minus 40 कितना होता है? सर वहाँ पर वो आएगा 18 आएगा 90 की जगह 90 के नीचे नहीं आएगा सर. 72 18 आएगा सर वहाँ 40 की जगह 72 वैल्यू आएगी. कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? एक्स स्क्वायर पर. यस सर, माइनस क्वाड्रेटिक सर 81 माइनस 72 आएगा सर. इसे काट दूं? यस सर. तो ये आंसर गलत है क्या? 3 और 6? नहीं सही है सर. ये सही है सर. सही है वो. सर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 आएगा वो. 18 आएगा. सर X square. हाँ. Yes. Yes. Please. 18. Yeah, that is the problem. Yes, please. This one. 18. अब सही है इक्वेशन? यस सर. सर हाँ. अब अपन इसको देखेंगे मामला. तो क्या आंसर आएगा? 3 और 6. 6,3. 3,6 से कंफर्म. यस सर. यस सर. क्लियर? ये है ना? मैंने चेक नहीं किया है ना? मैं आपको बिलीव कर रहा हूँ. तो ये 3 और 6 आ गया. तो इसका मतलब कर्व जो आएगा वो ये आएगा. यस सर. यस सर. अपर साइड है ना? कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाए. सिंपल तरीका ये है, इक्वेशन को मैंने 0 कर दिया तो ये पता लग गया कि 3 और 6 पर ये आ गई सिचुएशन. राइट? Yes, sir. यस यस सर. चलो. यस सर. तो ये तभी ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, है ना? दैट्स व्हाई इज इंपॉर्टेंट कर्व. सर इसमें कोऑर्डिनेट नहीं पूछे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव से इससे रूट इमेजिनरी है या फिर रियल है पता करके कर सकते हैं. हाँ, कर इससे सकते भी हैं. सीधा हो जाएगा. Yeah, lot of method to solve the quadratic equation. यस Right? तो as per your convenience, जिसमें आपको गलती होने के चांसेस नहीं है. There are lot of methods in mathematics too. Mathematics is a tool. We can check. Yes, sir. Right? अब देखो, हमको ये हमारे पास ये इक्वेशन है और we just want to calculate the maximum bending moment. We just want to calculate the maximum bending moment. देखो, अगर अब मैं बात कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए, the CD रीजन. देखो जरा फट अपन जब क्विकली जाएंगे. CD रीजन में बेंडिंग मोमेंट कैसा आएगा? देखो, कैन यू गिव आंसर क्विकली?
सर डाउनवर्ड एंटी क्लॉकवाइज नहीं सॉरी देखो सर क्लॉकवाइज। देखो अब सुनो, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। रुक जाओ, अब देखो, जब चूंकि ये लोडिंग सिमेट्रिक है, ठीक, लोडिंग सिमेट्रिक है, यस सर। अपन ने क्रॉस सेक्शन लिया एक्स एक्स ए बी के लिए, कैसा करवाया? इन्वर्टेड यू, क्लियर? यस सर। यस सर। यहां से अगर मैं लेता हूं, कैसा करवाएगा? इफ वी सी फ्रॉम दिस साइड, अगेन इन्वर्टेड सर। it is again inverted because this loading is trying to rotate the beam in which direction? Clockwise. Clockwise. क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज आएगा, मतलब कहाँ है क्लॉकवाइज? ये रहा, नेगेटिव आ रहा है, और नेचर सेम रहेगा जो इसका नेचर है। आर यू गेटिंग? Yes, sir. यस सर। यस सर। सेम सेम। तो वी कैन डायरेक्टली पुट इट हियर, ये लो, अपन लिख भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, Yes. आ जाएगा, है ना? बट द नॉट इज नॉट एन इम्पोर्टेंट टास्क। पैराबोलिक पैराबोलिक पैराबोलिक। नाउ द क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। वी कांट से दिस वैल्यू is more than 20 or not, right? This value is 20, this value is 20, but this value is पता नहीं है ना अपन को। Yes, sir. इसकी अपने पास एक, आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये इस रीजन में 20 मैक्सिमम है, इस रीजन में 20 मैक्सिमम है, लेकिन बीसी रीजन में कितनी मैक्सिमम है और कहाँ मैक्सिमम है? हाउ कैन वी कैलकुलेट? Sir, by finding the range of quadratic equation. It is nothing of minus, it is 5x square plus 45x minus 2. Do you have your own notebook? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बताएं जरा मेरे को एक बार। डिफरेंशिएट करके 3 उस और पॉइंट 6 की पर तो जीरो लोकेशन है। फाइंड कर। हाँ, प्लीज 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 डू इट, प्लीज डू इट, प्लीज डू इट। And this equation valid for x is equal to 2 to 7. सर 4.5 पे मैक्सिमम होगी। 4.4, 4.5. 5 Yes, sir. 4.5। no problem. 4.5. dm by dx is equal to 0 किया, यस सर। Yes, sir. है ना? तो उससे क्या आंसर आ गया? x इज इक्वल टू 4.5। ये आ गया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. 4.5. Dr. Yes. मीना इज ओके, नो प्रॉब्लम। मैं जरा काट दूं नाम एक बार, होल्ड। हाँ, माइनस 10x प्लस 45, तो x आ गया अपने पास 4.5 4.5. आ गया। Yes, sir. x Yes, कहाँ sir. से मेजर कर रहे हैं अपन? x कहाँ से मेजर कर रहे हैं? यहाँ से मेजर कर रहे हैं। 4.5 वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, कर रही है, यस यस सर। एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज ओके। तो Yes, sir. 4.5 के ऊपर ये जो कर्व चला गया मैक्सिमम, जस्ट पुट द वैल्यू, जस्ट पुट द वैल्यू, हाउ मच? पुट द वैल्यू करो जरा। फोर 4.5 माइनस 2 2.5, देखिए जरा क्या आता है। प्लीज डू इट। $11.25. सर 90 आ रहा है। अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं? 11.25। भाई ये 16 5 80 तो ये हो गया,
ये 90 हो गया, तो यहाँ 10-11 के आसपास आएगा। 11.25 पॉजिटिव नेगेटिव? सर नेगेटिव नेगेटिव आएगा सर। नेगेटिव आएगा सर। 101 माइनस का है। -11 पॉइंट हाउ मच? पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव 11.25 आएगा। पॉजिटिव आएगा, कर्व ऊपर है। पॉजिटिव आएगा सर, पॉजिटिव हाँ पॉजिटिव आएगा। ये कितनी वैल्यू आ रही है? 11.25 11.25 3.5। ठीक है। यस सर। आ गया? यस सर। यस सर। Yes, sir. 3 और 6 पर मैक्सिमम बेंडिंग, ये 0 है बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, है ना। आप रुक जाओ, ये तो बीएम डायग्राम हो गया, ये शेयर फोर्स डायग्राम हो गया। अब आ जाते हैं फिजिकल पे। ये जो कर्व है ये बेंड कैसे होगा? अगला चैप्टर आ रहा है बेंडिंग स्ट्रेस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। ये बेंड कैसे होगा? जब ये बेंड होगा तो कैसे दिखेगा हमको? ये तो झुक रहा है नीचे की सर तरफ। 2 वैल्यू बनेगी रिएक्शन की जगह, रिएक्शन फोर्स की जगह वैल्यू बनेगी। वैल्यू बना लेंगे Yes, अपन। sir. ये चेक करो। Yes, sir. ऐसे लिखेगा। यस सर। मैं केवल बेंडिंग डिफॉर्मेशन बता रहा हूँ, नेचर कि बेंड कैसे होगा। अरे अब बात समझ रहे मेरी अपन? Yes, sir. यस सर। ये वाला पोर्शन नीचे लोड लगा हुआ है, ये बीम कैसे झुका देगा? ये झुका दिया, ये झुका रहेगा तो ये ऊपर हो गया। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? Yes, sir. यस सर। है ना। ये वाला जो हिस्सा है वो ये है, क्लियर? यस सर। Yes, sir. और ये वाला जो हिस्सा है वो ये वाला है। आपको बात समझ आ रही है मेरी? यस सर। Yes, sir. That is the important point pertaining to the design of beam. Wait. है ना? Yes, sir. यस सर। यस The सर। last point is the last point from exam point of view. बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 2 पॉइंट्स पे 0 हुई है इस पूरे बीएम डायग्राम में। Yes, sir. यस सर। Bending moment is 0. These points are known as point of contraflexural. ध्यान रखें, contraflexural. Locate the point of contraflexural where the bending moment is 0. Where the bending Yes, sir. moment is 0. ठीक है? यस Sir, one question. अभी रुको, पहले मैं पूरा कर लूँ। Yes, sir. है ना। बेंडिंग मोमेंट इज 0 इज नॉन एज द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। हाँ फिर चलो पहले क्वेश्चन पूछ लो, फिर देखते हैं। Sir, the question is that is it always necessary that the point of contraflexural will always lie on the supports? नो, कहाँ लाई कर रहा है? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सरल यहाँ आ रहा है। इट इज नॉट एट सपोर्ट 3 and 6. Yes, sir. Yes, sir. 3 and 6 not Got at it, sir. support. Right? Got it, sir. Yes, sir. तो बेंडिंग मोमेंट इज 0, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सरल। लास्ट 1 मिनट ले सकते हैं अपन, 1 मिनट अभी। यस Yes, sir. यस सर। शियर फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। न्यूटन मीटर।
न्यूटन shear force in Newton. Bending moment, न्यूटन मीटर बेंडिंग मूवमेंट में अगर shear force का डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा? मीटर डिस्टेंस मीटर मीटर बेंडिंग मूवमेंट में नीचे मीटर ले आऊं तो उधर क्या आ जाएगा? Yes. आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपली यूनिट्स. यस सर तो बेंडिंग मूवमेंट इस डीएम है, shear force डीएफ है, एलिमेंट लेंथ डीएक्स है. यस सर चेक करें पहले तो विद यूनिट सही कि नहीं है. वी कैन Yes, डेराइव sir. इट ऑल्सो, वी कैन डेराइव इट ऑल्सो, कर लेंगे डेराइव. पहले देख लें कि ये चीज यूनिट से हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा. ये न्यूटन मीटर है, ये मीटर आ गया तो न्यूटन मीटर. यस सर न्यूटन मीटर यस सर इसका जो कंक्लूजन है वो ये है, इसका कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन ये है कि डीएम इक्वल टू क्या हो गया? एफ डी एक्स. सही है? यस सर Yes. है ना? एफ डी एक्स. Again I am saying f dot dx. If f is function of singly x to the power 1, so what is the m? Function of x square. Are you getting my point? Yes, sir. यस सर यस सर अगर shear force में केवल स्ट्रेट लाइन आ रही है तो बेंडिंग मूवमेंट में आएगा पैराबोला. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेगेटिव पॉजिटिव. अगर shear force 0 है, what about m? Can you give the answer? If shear force is 0, what is the value of bending moment? डिस्टेंस अटक गए. सर इफ वी गेट इट बाय इंटीग्रेशन देन इट विल बी x which is distance. If shear force is not a function of x, Yes sir. चलो इसमें बताओ. Sir then it will be constant. कोई बात नहीं, रुक जाओ, हटाओ उसे, छोड़ो, डोंट कंफ्यूज इट. ये ठीक है? अगर shear force x का Yes, sir. फंक्शन है तो बेंडिंग मोमेंट एक्स स्क्वायर का आएगा. अगर shear Yes, sir. force एक्स स्क्वायर का फंक्शन है तो बेंडिंग मोमेंट किसका फंक्शन आएगा? एक्स Yes, क्यूब. Yes sir. एक पावर ज्यादा. यस सर shear force x टू दी पावर 0 का फंक्शन है तो बेंडिंग मोमेंट किसका फंक्शन आएगा? एक्स का x का आएगा. यस सर है ना? x टू दी पावर 0 मीन्स कांस्टेंट वैल्यू. तो m फंक्शन ऑफ x, स्ट्रेट लाइन. बात समझ रहे हैं अपन? Yes sir. यस सर इसको मैं जस्टिफाई कर दूं x टू दी पावर 0, दिस वन. तो व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट? I am just talking about the nature of curve. I am not talking about the negative or positive. Clear? Yes, sir. Yes sir. The shear force is this one, the bending moment is this one. If the shear force is x, shear force is inclined line. What about bending moment diagram? Parabola. Maybe inverted U, maybe U parabolic. Clear? एक Yes. पावर ज्यादा. Yes. ये x Yes, टू दी sir. पावर 1 है तो ये x टू दी पावर 2 आया. ये x टू दी पावर 0 है, ये x टू दी पावर 1 आया. shear force अगर पैराबोला है, आपको मिल गया, तो you can simply give the answer. The bending moment diagram is x cube, cubic curve. यस सर Getting? Yes, sir. Yes यस sir. सर एक चीज तो ये हो गई. सीधे डायरेक्टली shear force डायग्राम अगर एक ऐसा लाइन आपको दिख रहा है तो उस रीजन में बेंड
इट इज नॉट ए जीरो, इट इज नॉट ए जीरो, राइट, है ना। शेयर फोर्स अगर कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू है तो बेंडिंग मूवमेंट स्ट्रेट लाइन में जाएगा। शेयर फोर्स अगर स्ट्रेट लाइन में है तो बेंडिंग मूवमेंट एक्स स्क्वायर में चल जाएगा। शेयर फोर्स अगर एक्स स्क्वायर में है तो बेंडिंग मूवमेंट एक पावर ज्यादा क्यूब में चल जाएगा। गॉट इट? Yes, Yes, sir. sir. If the bending moment is constant, what is the value of shear force? If the bending moment is constant value, what is the value of shear force? 0. Yes, 0. If the bending moment is constant, the shear force is 0. We have done this type of numerical in the previous notes. You can simply check the notes. Here the bending moment is constant and we can draw the shear force diagram and we obtain is simply a zero line. Yes, sir. You Yes, can sir. see the notes. बात समझ में आई आपके? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. शेयर फोर्स और बीएम डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम जिस नेचर का है, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम उसकी एक्स की एक पावर ज्यादा में रहेगा, राइट? Yes, So there Yes, are sir. 3 conclusions and 4th conclusion is if Yes. the m is constant, the force is 0. There should be a point which is zero line. Yeah. Zero line. Shear force, which one is zero line? This one. Sir, Yeah. when the moment is constant. We have done is this numerical. Constant bending moment acting at the free end of cantilever beam. So what is the shear force diagram? Yes, sir. We have done it. We have done it. पुरानी Yes, नोट्स sir. में देखें. 0. Yes. M Zero. is 10. M is 10. What about F? 0. 0. Yes, sir. ठीक है ना? तो बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. It is not a zero line. It is constant value. It is x to the power 0, 1 है. ठीक है? आज के लिए बहुत है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये Yes, sir. छोटे छोटे Yes, पॉइंट्स हैं. This is the conclusion of this chapter. So let me stop. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. अब्दुल माजिद. Sir. ग्रुप से लेफ्ट हो. Yes, sir. ओके. सर मेरा स्क्रीन काम नहीं कर रहा सर, वहां से. अब्दुल. हाँ. ओके. समझ आया.